So once again, good evening, my dear students. This is class of Dheeraj sir, and we are studying social science, and we are taking especially civics. Okay, and the chapter is working with the constitution. Working with the constitution, in which we are studying the great features of the Indian constitution. That is democratic India. Democratic India, and why we are studying democratic India? Means democracy is the great feature of Indian constitution, and that we are studying in detailed manner, and later one the election and etc. Okay, so why we are studying? Because you are at the age of 16 and going to vote after 2 years, and you will be part of Indian political process, election process, and that is why it is very important. So you must be a great citizen, responsible citizen, and that is why to implement the values of great citizen we are studying this portion. Okay, so students, वर्किंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी में हमने कुछ ऐसी कंसेप्ट्स पढ़े हैं जो डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. जैसे कि हमारे देश पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात की हमने, राइट टू वोट, दैट इज आवर लीगल राइट. After the completing age of 18, we are getting that right in through the adult suffrage, and not only men but also women can cast vote and have the equal values. Okay, so that is the good thing in India. And afterward we have studied about the decentralization of democracy, which means डेमोक्रेसी को और ज़्यादा पावरफुल बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पावर्स के शेयरिंग करना पड़ेगा. ओके, द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल टू local self government, or the power sharing between the central to local self government, or we can say the division of power between the central, the state and the local self government, that is called the decentralization of power. And in other words we can say the federal system of governance. Okay, that we have adopted already by our constitution. Okay, और उसका benefits, what are the benefits of decentralization of power or the democracy that we have studied yesterday? और मैं वो फिर से repeat नहीं करना चाहूँगा because our video will be so lengthy, and that will be hectic to upload me and to load in your mobile also. So students, now today we are going to understand right to information, that is RTI Act. RTI, okay, Right to Information Act of 2005. Okay, so students ये 2005 में implement हुआ, लेकिन इसका background बहुत बड़ा है. People from so many years were demanding this Right to Information Act, and so many social activities involved in that, and because of that the Indian government passed this act in 2005 and started implementation. And this is very great act which is giving strength in the democracy, in terms of transparency, and it removes the corruption, and that is why it is very important, and every citizen of India must know about this act. क्योंकि कभी भी किसी भी पब्लिक ऑफिस से, गवर्नमेंट ऑफिस से कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, so as per the legal right the citizen can ask about any information, and it is duty of that office, public office, कि वो 30 days में वो इंफॉर्मेशन उसको देनी होती है, सिटीजन को देनी होती है, नागरिक को देनी होती है. दिस इज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. माहितीचा अधिकार जिसे हम बोल सकते हैं, मराठी में माहितीचा अधिकार, और हिंदी में जो जानकारी मांगने का जो अधिकार है वो हमें मिलता है. सो फ्रेंड्स, इसका बेनिफिट क्या है? आप सबको पता है कि हम डेमोक्रेसी को डिटेल स्टडी कर रहे हैं, और डेमोक्रेसी आज इतने बड़े कंट्री में जो सक्सेसफुली हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, तो इसके पीछे कुछ डिसीजन का, कुछ ऐसे जो है हमारे देश में जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज है उनका ऐसा हाथ है
जैसे हम बोलेंगे कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, अवेयरनेस है लोगों का, और वो पॉलिटिकल अवेयरनेस जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट किस तरह से स्टेप्स उठाती है वो भी इम्पोर्टेंट है। और राइट टू वोट, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट टू वोट दिया है, एडल्ट सफ्रेजेस जैसे एडल्ट सफ्रेजेस जिससे हम 18 के होने के बाद हम वोटिंग कार्ड बना सकते हैं और वोट कर सकते हैं। सो पब्लिक ओपिनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वही एक चीज़ है कि गवर्नमेंट को अदल बदल सकती है और डेमोक्रेसी बरकरार रह सकती है। दूसरी चीज डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इट इज अल्टीमेट द पीपल्स रूल, बट जब कभी 5 साल के लिए किसी गवर्नमेंट के हाथ में पावर जाती है तो वो मिसयूज होने का चांसेस रहता है, किसी इंडिविजुअल से या फिर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, तो वो ना हो इसलिए क्या होना चाहिए, देयर शुड बी द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ओके, क्योंकि बेसिक या ग्रासरूट लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट पहुंच नहीं सकता है बहुत फास्ट, तो क्या होगा कि बेसिक लेवल के या ग्रासरूट लेवल के भी जो भी प्रॉब्लम्स है या क्राइसिस है वो सॉल्व करने के लिए लोकल बॉडी ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। एंड इसके वजह से क्या होता है कि लोकल पीपल कैन टेक एक्टिवली पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मैकेनिज्म एंड द पॉलिटिकल प्रोसेस, तो इससे डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग होगा। आगे हम चलने की बात करते हैं तो यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी हमारे गवर्नमेंट ने हमको दिया है, जिससे डेमोक्रेटिकली जो भी हमारे गवर्नमेंट या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है या इंस्टीट्यूशंस है, पब्लिक ऑफिसेस है, उसमें से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, तो इसका फायदा यह है अल्टीमेट इससे डेमोक्रेटिक वैल्यूज इंप्लीमेंट होंगे और डेमोक्रेटिक रूल को स्ट्रेंथ मिलेगा, और इससे और ज्यादा फायदा ये है कि इट एम्पावर्ड द सिटीजनशिप, मतलब कि हर एक सिटीजन को, भारत के हर एक सिटीजन को क्या होगा, वो सक्षम बनेगा, स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि उसको गवर्नमेंट ने राइट दिया है कि ही कैन और शी कैन टेक्स दी एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पब्लिक ऑफिसेस, तो उसके साथ ट्रांसपेरेंसी बने रहेगी, तो पब्लिक क्या होगा, एम्पावर्ड होगा, सिटीजन क्या होंगे, एम्पावर्ड होंगे। जैसे हमारे देश में हमने वुमेन को, जैसे इन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वी हैव द सेकेंडरी स्टेटस फॉर द वुमेन, तो इससे क्या होता था कि वुमेन जो है वो दबे हुए थे, अंडरस्टैंड, तो हमने क्या किया कि टाइम टू टाइम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमने कुछ मूवमेंट्स और कुछ प्रैक्टिसेस लॉन्च किए, तो उसके वजह से आज वुमेन आज इक्वली आ गए हैं, है ना, इक्वल स्टेटस उनको मिलता है, उतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो इसी हिसाब से आप अगर हम हर एक सिटीजन को एम्पावर करना है तो पब्लिकली राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके पास भरोसा रहता है कि वो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, करप्शन नहीं होगा, उसका काम टाइम में हो जाएगा। इट इंक्रीजेस द participation and interaction of the people with the government. Am I right? If there is a right RTI act and you people wants to take any information from any public offices, तो आपका क्या होगा कि there may be the interaction with the government, तो इससे क्या होगा, लोग और ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे, जागरूक बनेंगे। Okay, it is strengthening the democracy and building the relationship of the trust. Am I right? So ये क्या होगा कि it gives the strength to the democracy, वो तो बात सही है, and it builds the relationship of trust, सही बात है। For example, जैसे किसी पब्लिक ऑफिसेस में या हॉस्पिटल में बोलो या स्कूल में बोलो, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले जो लोग हैं, जो ऑफिसर्स है, ऑफिशियल्स है, उनमें और लोगों में एक भरोसा बना रहेगा, क्योंकि इनको एक डर रहेगा कि देयर इज एन आरटीआई एक्ट एंड पीपल कैन डिमांड एनी इंफॉर्मेशन ऑन एनी टाइम, तो उनमें और लोगों में एक ट्रस्ट बना रहेगा, ओके, एक भरोसा बना रहेगा आरटीआई की वजह से। अब अगर आरटीआई नहीं होता तो यू कैन इमेजिन व्हाट विल हैपन, जो भी पब्लिक ऑफिसर्स है दे कैन हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन बाय देयर वे, ओके, कल आओ परसों आओ, इस तरह से, या जो भी रिकॉर्ड्स है वो रिकॉर्ड्स अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाएंगे, तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड बोलिए या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी से रिलेटेड अगर कोई रिकॉर्ड्स है तो वो अच्छे से मेंटेन नहीं होंगे और ट्रस्ट नहीं रहेगा लोगों में और पब्लिक ऑफिसर्स में। सो दैट इज व्हाई द आरटीआई एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
It ensures the transparency and accountability of the government and reduce the element of secrecy. तो ट्रांसपेरेंसी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो पब्लिक ऑफिसेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी बने रहेंगी क्योंकि उनमें डर रहेगा कि पीपल कैन डिमांड एनी इंफॉर्मेशन एनी टाइम, और अकाउंटेबिलिटी भी उनमें, अकाउंटेबिलिटी का जो वैल्यू होता है जवाबदेही यानी कि रिस्पॉन्सिबल, ओके, फॉर द एनी पब्लिक ऑफिसेस, एनी पब्लिक डिपार्टमेंट, जो भी वहाँ का काम चलता हो, जैसे हम हेल्थ का काम बोले या एजुकेशन काम बोले, एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन संभालेगा, हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ संभालेगा, तो वो लोग जो है वहाँ पे काम करने वाले ऑफिशियल्स जो है उनमें अकाउंटेबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा क्योंकि उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि हमको एज पर द आरटीआई एक्ट हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। सो in this way it ensures the transparency and accountability of the government and reduces the element of secrecy, यानी कि जो भी किसी भी पब्लिक ऑफिसेस में जो भी कोई भी चीज सीक्रेट रखने का या किसी भी भ्रष्टाचार को, करप्शन को दबोच के रखने का जो एक जज्बा होता है ऑफिसर्स में, वो नहीं रहेगा। सो इन दिस वे द आरटीआई एक्ट ऑफ 2005 हेल्प अस द स्ट्रेंथ, गिव्स द स्ट्रेंथ टू द डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को अगर आपके देश में बनानी है, बरकरार रखना है, तो इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज या राइट्स लोगों को होने जरूरी होते हैं। तो I will share you the detail about the RTI Act from Wikipedia. So you have to read carefully when it was passed and when it is enacted in India. Okay, ये सारी चीजें, या in which form you can get the information from the offices, ठीक है। तो RTI एक्ट के अकॉर्डिंग ऑफ 2005 इंडियन नेशनल लेवल पे क्या होता है कि नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, स्टेट लेवल पे स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, ओके, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है। उससे भी परे जाकर हम किसी भी ऑफिसेस में इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट करना होता है, ये उस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि ये स्कूल है, स्कूल में भी इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है और वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है स्कूल के प्रिंसिपल, अंडरस्टैंड। सो इस तरह से आप उनको आप एज अ स्टूडेंट्स आप मुझे पूछ सकते हैं या स्कूल को पूछ सकते हैं कि हाँ, व्हाट आर द इवैल्यूएशन मेथड्स वी आर अंडरटेकिंग इन आवर स्कूल। आप इवैल्यूएशन प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं, आप इवैल्यूएशन प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं, या फिर of different subjects, okay। तो in this way you can get the information from any public offices by filing the RTI, by filling the form, and within 30 days there is a provision कि 30 days में ही under 13 days पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है इन एनी फॉर्म, चाहे वो PDF फॉर्मेट में हो, चाहे वो डिजिटल फॉर्मेट में हो, ओके। तो इस हिसाब से आपको वो इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज ऑफ दिस फीचर्स, ओके। सो यू हैव टू नोट डाउन दिस ऑल इंफॉर्मेशन व्हिच आई written on the board. So thank you very much for watching and enjoy the study. Keep studying, keep watching and keep interest. Thank you.